we worked for many years in ISKCON center here in Kathraj. You have seen this big temple in Kathraj? So I was there for almost 20 years. But then I realized that I need to do something for the kids, for those who can take things in that age. So with that idea to educate the kids, we started a Gurukulam near Ranchi, which is MS Dhoni's home. So we have got 500 acres land. Do you know what the acre means? How much is 1 acre around? 40 guntas, yes. Right. And what is 1 gunta? Approximately 1,000. And how much is the size of this hall? Approximately. Good size. Yes. You can become a good civil engineer. Yes. Okay. So we have got 500 acres land. There we teach kids 21 languages. 21 languages. In just 6 months' time, kids can speak 8 languages. 8. English, of course, you also can speak. Sanskrit. How many of you? Tam kutra gachasi? Yes, who can reply? Tam kim karosi? Aduna tam kim karo? Okay, fine. Sanskrit. Then they can speak Bangla. They can write also Bangla. They can speak Marathi. They can speak Hindi. How many languages? Marathi, Bangla, Hindi, English, Sanskrit, and then their regional languages, Santhali, Mundari. Now we are teaching them Tamil, Telugu, Kannada, and then 8 of the foreign languages, Japanese, Chinese, Russian, Spanish, French. So 21 languages. Why? Somebody asked, why you are teaching so many languages to kids? I say, what's wrong if I teach? Anything wrong? Huh? If you can learn, why should I not teach? हाँ क्या दिक्कत है भाई? तू अगर सीख सकता है तो मेरे को सिखाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? Okay. Yes, now you are a Pune kid. You know what is the strength language gives you? Language से आपको क्या ताकत मिलती है? कोई बता सकता है? अगर आप ज़्यादा लैंग्वेज जानोगे तो क्या ताकत मिलेगी आपको? हाँ, yes. Anywhere. Good. Yes. Yes, we learn. So, but what is the benefit that we get by learning more language? We can speak. So, what happens when you speak to that more language? He knows Marathi. I learned Marathi for. So, what will happen if I know Marathi? I can become best friend. Yes, big hand. We can be best friend if we know the other language. Yes. Yes, we can communicate. Very important. We want to communicate with others. Yeah. We want to know their secrets. तुम्हारा राज क्या है ना? कहीं जाते तो उसका राज पता करते हो ना? यहाँ के लोगों का राज क्या है ना? पता है अफ्रीका के जंगलों में जो लोग रहते हैं उनके बाल 75 इयर्स तक काले रहते हैं. हाँ, बाल मतलब मराठी का बाल नहीं, बाड़ा नहीं. हाँ, केस. ठीक है. कैसे रहते हैं? हाँ, कैसे बाल काले रहते हैं? हाँ, तो उसके लिए यू हैव टू नो दैट जुलू लैंग्वेज. तब तो बताएगा ना तुमको. दोस्ती करेगा तब तो बताएगा ना सीक्रेट को ऐसे बताता है क्या? हाँ, इफ यू बॉस देन विल दे टेल यू द सीक्रेट? नहीं ना. तू गन भिड़ाएगा, बोल सीक्रेट बताएगा, बता सकता है लेकिन कुछ और बता देगा. तुम वो करोगे बाल पक जाएंगे पहले ही और उल्टा बता देगा कुछ. वन फॉर्मूला है कि नहीं? सो मोर लैंग्वेज, मोर रिचनेस टू योर कल्चर. ज्यादा लोगों के बारे में आप समझ जाते हो. यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं. अगर आपको रसगुल्ला बनाना सीखना है तो बंगाली सीख लो. लैंग्वेज इटसेल्फ भी लाइक रसगुल्ला. आमार भालो भाषा अच्छे. वो मुंह में लगता है रसगुल्ला दबा के बोल रहा है, ऐसा लगता है. एनीबॉडी बांग्ला हियर? कोई बांग्ला जानता है? यस. तो बांग्ला वालों से अगर आप बात करोगे
तो ऐसा लगेगा कि मुंह में ही मिठाई डाल के बात कर रहे हैं, इतना मीठा बोलते हैं ना। लड़ाई भी करेंगे तो लगता नहीं कि लड़ रहे हैं कि प्रेम कर रहे हैं, पता नहीं चल पाता है। Am I right? यस, है ना। और मैं बिहार से हूं, इसलिए मैं बिहार के बारे में बोल सकता हूं। बिहारी अगर मीठा भी बोलेगा ना तो लगता नहीं कि मीठा बोल रहा है कि लड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। कब ये मार देगा पता नहीं चलता, है ना। तो लैंग्वेज का उसका कल्चर से उसका संबंध है ना, इट इज रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग्स, राइट, है ना। सो more languages you become more human, you become friend to more people, है ना। This is first strength. Second strength is in your age you can learn तर्क शास्त्र। तर्क शास्त्र, तर्क मतलब लॉजिक, हाउ टू पुट योरसेल्फ इन ए लॉजिकल टर्म। कई बार ऐसा होता है कि हमको कुछ बोलना है, कैसे बोले समझ में नहीं आता है। कितने लोगों की समस्या है? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू गेट इन ट्रबल, यू वांट टू टेल समवन सम, और कुछ बोलते और कुछ का कुछ समझ जाता है, उसका कुछ का कुछ में नहीं निकल जाता है, फिर बाद में झगड़ा हो जाता है। कितने लोग एग्री करते हैं इससे? यस, या। तो अभी मैं कुछ कुछ आपको सिखाऊंगा उसमें से। आई एम गोइंग टू टीच यू वेरी फ्यू ऑफ दोज थिंग्स। सक्सेस पाने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए? सबसे पहला, आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। योर बॉडी मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। एंड हाउ यू गेट स्ट्रांग बॉडी? यस, जिम में जाएंगे, ओके। ईस्ट वेजिटेबल्स, योगा किसने कहा? योगा, योगा, बिग हैंड, योगा। कितने तरह का योगा आप जानते हो? करना छोड़ दो, जब बता दो कि इतने तरह का योगा मैंने जाना है, एक आध बार करके देखा है। हाँ, बहुतों ने किया है, ठीक है। जानते हो आपने, एक बार तो किया, रेगुलर नहीं लेकिन एक बार तो किया है, करके देखा है ना। कुछ कुछ याद आ रहा है, सर हमने एक बार किया था, गुड। योगा करने से होता क्या है? बॉडी से एक मिनट, हाँ, एक कौन करता? हाँ हाँ हाँ, बोलो। हेल्दी, फ्लेक्सिबल, गुड। ये बच्चों वाला आंसर है, मुझे बड़े वाला आंसर चाहिए एक। हाँ, ये तो मतलब साधु वाला, हाई लेवल चला गया। बीच वाला कुछ? हाँ, ब्लड सर्कुलेशन, यस, योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, बिग हैंड। कॉन्सेंट्रेशन, ये भी तुम्हारा हाई लेवल, गुड, कॉन्सेंट्रेशन। अब हम सीखने वाले हैं, आपको कुछ ऐसे चीजें देने वाले हैं, बहुत सिंपल, 1 2 3 4, 4 चीजें सिखाने वाला हूं बस। 4 चीजें अगर आपने पकड़ लिया तो बस आप ही हो, फिर आपको कोई पकड़ नहीं सकता, ठीक है। सो अब मैं बताऊं, आगे बढ़ूं? शुड आई गो हेड? 4 लेवल गेम चेंजर। गेम मतलब लाइफ का गेम, है ना। लाइफ के गेम को चेंज करना है, कैसे करना है देखिए। फिजिकल, युक्ताहार, गीता में कहा गया है, वन हु इज रेगुलेटेड इन हैबिट्स ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम। जिसने अपने लाइफ में एक चीज सीख लिया कि रेगुलेट करना है अपने आप को। क्या करना है? व्हाट इज रेगुलेट? व्हाट इज रेगुलेशन? कैन यू एक्सप्लेन 2-3 लाइन्स? रेगुलर होना चाहिए, ठीक है, हाँ। टू रिपीट दैट, यस, ये तो आंसर वैसा ही है, दोनों एक जैसे ही है, सही है लेकिन एक जैसे। और कोई अलग, कुछ अलग जैसा? हाँ, टू रिपेयर, ओके, ये भी ठीक है। एक थोड़ा अलग जैसा, तुम दोनों तीनों एक जैसे बोल रहे हो, हाँ बोलो, ठीक है, तुम तीनों ठीक हो, हाँ। कंटिन्यू भी, तुम भी एक ही जैसे हो, तुम भी एक ही जैसे हो, सबके टीचर्स एक हैं, वो तुम भी वही हो, हाँ। हाँ, ठीक है, चलो और कोई? रेगुलेट मतलब क्या? हाँ, कुछ बोलो, हट के बोलो। इन लोगों ने जो आंसर दिया उससे हट के, गलत हुआ तो यूल गेट प्राइज। हाँ, एकदम हट के आंसर देने के। रेगुलेट मतलब ये, हाँ हाँ, टू फॉलो दैट चेन, ओके, यू आर वेरी क्लोज, यू जस्ट 95% तक आप पहुंच गए हो। एक लास्ट का किक चाहिए आपको। आप बस ट्रेजर तक पहुंच के, आपका बस एंड का आपका दरवाजा आपको मिला नहीं। यस, डेली रूटीन वही है, पहले बोल दिया। हाँ हाँ हाँ, रेगुलेट का मतलब क्या है? हाँ, टू कंटिन्यू नेक्स्ट सेम थिंग, ये भी सही आंसर है, आंसर तो सही है।
प्रैक्टिस, हाँ हाँ, एक्सेप्ट द चेंज। और कोई? सही आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन बाकियों का आंसर के जैसा ही है। कुछ मुझे एकदम हटके सीधे साधे मुझे आंसर्स पसंद नहीं आते, मुझे थोड़ा हटके बताओ। एक तमाचा मारो उसके ऊपर, रेगुलेट के ऊपर, जो आंसर निकलेगा बताओ। एक माइंड में रेगुलेट के ऊपर एक थप्पड़ मारा जोर से। रेगुलेट का मतलब क्या? हाँ यस, हाँ बोलो। हाँ सर, हाँ हाँ, मेकिंग चेंजेस, ठीक है, आंसर ठीक है, चेंजेस ठीक है। हाँ हाँ बोलो। हाँ मतलब रेगुलेट में क्या होता है? रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? हाँ 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 बोलो। चेंज है, ठीक तो है। हाँ बोलो। We will be more. हाँ हाँ हाँ, बहुत क्लोज हो, बस 98% लगा चुका है। बस बस बोलो। विल बी मोर, यस यस। Controlled. कंट्रोल, यस, बिग हैंड। कंट्रोल 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 कंट्रोल, नहीं सुना है? याद आ रहा है कहीं से? रेगुलेट का मतलब होता है जहां भी ज्यादा हो रहा है ना वहां से कंट्रोल, जहां कम हो रहा है वहां पे हाँ फैसिलिटेट, दैट इज रेगुलेशन। एम आई राइट? है ना? यस। पहला है अपना खाना, व्हाट यू ईट, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव, यू आर इन 8th स्टैंडर्ड? 10th में कितने लोग हैं? 9th में, 8th में? गुड, आप बड़े हो। मैं आपको छोटा समझ रहा था। अच्छा, अल्कलाइन और एसिडिक का मतलब पता है किसी को? क्या अल्कलाइन किसको कहते हैं, एसिडिक किसको कहते हैं? हाँ कौन बताएगा? हाँ हाँ, बेस, यस, गुड, बिग हैंड। व्हाट इज योर नेम? दीपक, गुड गुड आंसर दीपक। और एसिड किसको कहते हैं? हाँ सॉरी नेचर, गुड, बिग हैंड। हाँ हाँ हाँ, और कुछ? विच हैज? अरे झकास, अरे ठेठ 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 ठेठ। यू आर इन विच स्टैंडर्ड? 9th? अरे 10th वाले किधर है यार, तुम्हारी नाक काट दी उसने। H+N बता दिया, देखो। हाँ मालूम था, ओके। फिर अच्छा ठीक है, बेस, ठीक है ठीक है। अल्कलाइन में क्या होता है? उसमें H होता है, इसमें क्या होता है? बिग 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 हैंड फॉर एवरीवन। अब उसका खाने में एप्लीकेशन देख लो। हमारे ब्लड, अच्छा न्यूट्रल पीएच कितना होता है? अरे वाह, आप सब डॉक्टर इंजीनियर बन ही सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं। ब्लड का पीएच कितना होता है ये शायद आपको नहीं बताया होगा। अरे अल्टीमेट हो गया। 74 अल्कलाइन है कि एसिडिक है? कल मैं यहीं पे क्लास दे रहा था ऊपर में, बड़े लोगों के लिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बैठे थे, और मैं ब्लड का पीएच पूछा था, तो बहुत लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, भूल गया लगता है कब पढ़ा था। ब्लड का पीएच क्या है? मतलब क्या हुआ, एसिड हुआ कि अल्कलाइन हुआ? एसिडिक है कि अल्कलाइन है? ब्लड एसिडिक है कि अल्कलाइन है? अल्कलाइन है, स्लाइट अल्कलाइन, थोड़ी सी हल्का सा अल्कलाइन है ना? खाने में जितनी भी चीजें हैं, स्पाइसेस, ऑयल, सारे के सारे एसिडिक नेचर के हैं। खाना जो आप खा रहे हो वो सब का सब एसिड है। ऑयल को कहते हैं फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है? अब आपने पढ़ा होगा या आपके 11th में होगा, ऑयल को कहते हैं फैटी एसिड। मिर्च होता है वो भी एसिडिक होता है। सारे स्पाइसेस ऑलमोस्ट एसिडिक होते हैं। तो अगर खून अल्कलाइन है थोड़ा सा, सारा खाना एसिडिक खाओगे तो खून अल्कलाइन कैसे रहेगा? मतलब कुछ अल्कलाइन भी चीजें खानी पड़ेंगी। और कौन सा खाना जो अल्कलाइन होता है? फाइबर, ओके। हाँ हाँ, सोडा, बेकिंग सोडा, गुड आंसर, गुड आंसर। हाँ, और बेकिंग सोडा जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है, इतना हमको चाहिए नहीं। खाने में बेकिंग सोडा नहीं खाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। हाँ हाँ हाँ, उसने देख लिया उधर,
कि अगला वो आने वाला उससे ही कुछ होगा रिलेटेड। जितने फ्रूट्स हैं पक जाने के बाद अल्कलाइन हो जाते हैं, कच्चे में एसिड होते हैं, तो पके हुए फल रोज खाने चाहिए। कितने लोग पके हुए फल खाते हैं? ओके, अब मैं अगला सवाल करने वाला हूं, कितने लोग ग्रेप्स को धो के खाते हैं? ठीक है, कौन से फल खाने चाहिए? एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, बट इफ डॉक्टर स्मार्ट कीप एप्पल अवे। हाँ, ग्रेप्स, ठीक है। कौन से फल खाने चाहिए? हाँ बोलिए, पीछे बैक साइड। हाँ, सीजनल, ये आंसर सुनना था मुझे, आपके लिए भी हैंड दें। सीजनल, सीजनल फ्रूट्स कैसे समझ में आया कि ये सीजनल फ्रूट है? वो कैसे समझेगा आपको कि सीजन है ये फल का? हाँ 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 हाँ, लेकिन आप तो शहर में हो ना, आपको फल कहां दिख रहे हैं, कौन से सीजन में कौन सा फल है? कैन वी जस्ट हैव ओपिनियन दैट वन विल स्पीक, सो हु विल स्पीक, रेज योर हैंड। हाँ बोलो, कैसे पता चलेगा कि सीजनल फ्रूट है? हाँ, कोई नहीं, तुमने 108 आंसर कर दिया है ऑलरेडी। नहीं नहीं, सीजनल, सीजनल, इसी सीजन का फ्रूट है, कैसे समझेगा? कोई सिंपल सा टेक्निक बताओ, एकदम हाई फाई टेक्निक नहीं सुनना है मुझे, सीरियस। हाँ बताओ। हाँ बोलो। हाँ, मार्केट में जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वही सीजनल फ्रूट है, समझ में आया? जो ठेले वाला बेच रहा है ना, सब ठेले में जो दिख रहा है मतलब वो क्या है? उस सीजन का फ्रूट है, क्लियर है? और सीजन का फ्रूट सीजन में खाना है, वही है उस सीजन का अल्कलाइन फ्रूट। जो सबसे सस्ता होता है वो सीजनल फ्रूट है ना? क्या खाना है आपको? सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। इज दैट ओके? फ्रूट्स खा के 45 मिनट्स तक कुछ नहीं खाना है, क्योंकि फ्रूट्स का अल्कलाइन नेचर जो होता है खाने के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसलिए फ्रूट्स के आगे पीछे गैप चाहिए, तब वो फायदा करेगा, तब उसका जो एसिड, उसका जो अल्कलाइन है, जो बेसिस हैं, वो ब्लड में जाएंगे और ब्लड को हेल्प करेंगे। फ्रूट्स खाने के आगे पीछे कुछ नहीं खाना है। अगर आपके सर और टीचर खिलाते हैं तो लेट देम कॉल मी, आई कैन क्लैरिफाई। लेकिन अगर आप घर से ऐसा कर सकते हो, ब्रेकफास्ट के 1 घंटा पहले फ्रूट्स खा लो घर में, उसके बाद 1 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करना, फिर लंच जो आप करते हो, बाकी सब रेगुलर चल सकते हैं। इज दैट ओके? ईट इन प्रॉपर क्वांटिटी। कितना खाना चाहिए? आई एम ए बैड एग्जांपल, बट लेट अस टॉक फ्रॉम द आइडियल्स। कितना खाना खाना चाहिए? हाँ बोलो, लिमिट में। वो लिमिट कितना है? कितना बैलेंस कहाँ के बाद ऑफ हो जाता है? हाँ, कितना अमाउंट, कितना खाना है वो पूछ रहा हूं। पेट भर के? हाँ चल बैठ, गलत हो गया। हाँ बोलो। 50%। अरे देख ना, इधर लिखा है। पेपर आउट हो गया फिर भी तू फेल हो रहा है, कैसे? पेपर आउट है ना यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर इज ऑलवेज देयर, आंसर के साथ लिखा हुआ है। 50% खाना है, जितना भूख लगा उसका 50%। फिर जब भूख लगे फिर 50%। जितने बार भूख लगे उतनी बार 50% खाते रहो। थोड़ा पानी के लिए जगह छोड़ना है, थोड़ा हवा के लिए, थोड़ा सांस लेने के लिए चाहिए ना जगह। इतना खा लिया कर, है ना? वो कुत्ता कभी कभी ज्यादा खा लेता है, ऐसा पैर फैला के सो जाता है, हाँ कर रहे बैठ के। इतना नहीं खाना चाहिए, है ना? एक्सरसाइज, सॉरी, एक्सरसाइज करने से जब स्ट्रेस आता है, एग्जाम का टेंशन आता है ना? नहीं आता है? आता है। 10th का एग्जाम होने वाला है, डेट अगर आ गया तो कैसा लगेगा? ऐसा ऐसा करने लगता है ना? होता है कि नहीं? नहीं होता है? होता है। तो उससे जो टेंशन से जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, उसको बॉडी से निकालना होता है। वो कैसे निकलेगा? थोड़ा पसीना निकलने से। व्हेन यू स्वेट दैट थिंग गोज आउट। इसलिए स्वेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कुछ योगा करोगे रेगुलर बेसिस पे, थोड़ा पसीना तो निकलेगा। कितने लोग रेगुलर खेलते हैं? अच्छा, कितने लोग नहीं खेलते हैं? रेगुलरली नहीं खेलते? ओके,
जो नहीं खेलते हैं उनको खेलना चाहिए. यू शुड प्ले. आउटडोर में बोल रहा हूँ. नो प्रॉब्लम, वी प्ले लूडो. अरे लूडो को कीमत क्यों नहीं इसमें. और वो बिजनेस और वो चेस वो भी है, लेकिन उसका नहीं. आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट इंडोर गेम्स. हाँ, आउटडोर गेम्स. ओके, मतलब जिसे फिजिकल एक्सरसाइज हो रहा है, ऐसे गेम्स की बात कर रहा हूं. सोना कितना चाहिए? ओके. अगर कम सोएंगे तो क्या होगा? हाँ हाँ, ठीक है, गुड. ज्यादा सोएंगे तो क्या होगा? हाँ, लेजी हो जाएंगे. ठीक है. कब सोना चाहिए? हाँ 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 हाँ, गुड गुड. कितने लोगों को रात को 9 बजे के आसपास नींद आती है, झपकी आती है, ढुलकी? एक ढुलकी एक अपघात. कितने लोग आती है? इतने लोग आती है, बाकी को नहीं आती. 10 बजे के आसपास एक ढुलकी आती है ना. हाँ, तो बॉडी क्या कह रही है? कह रही है ना. तो क्या करना चाहिए? सिंपल है ना. अभी देखो सोने से क्या होता है. ये लोग कब सो रहे देख रहे हो? सही टाइम पे सो रहे हैं, हाँ कि ना. 9 to 12 नाइट की जो स्लीप होती है ना, पुणे के लिए 9 मतलब ये 10 है. मतलब हम जो मिडिल ऑफ लाइन से हम आधे घंटे इधर हैं. 9:30 9:45 पकड़ लो, अराउंड 10. सो 10 to 1 की जो स्लीप है, वो 3 घंटे की जो नींद है, वो 6 घंटे के बराबर होती है. 1 घंटा सोने से 2 घंटे का फायदा हो रहा है अगर टाइम पे सो गए तो. और जो 1 से जो 4 की जो नींद है, मतलब 1 घंटा आगे कर दो, वो 1 घंटे की नींद 1 घंटे के बराबर है. और 4 से जो 7 की जो नींद है ना, वो 1 घंटे की नींद आधे घंटे के बराबर है ना. आया समझ में? ये मैंने जो टार्ट बनाया है रांची के लिए बनाया है. तो रांची जो है मिडिल लाइन से आधा घंटा उधर है और हम यहाँ पे आधा घंटा इधर है, तो इसलिए मैंने 1 घंटा बढ़ा दिया. ठीक है ना. जो 10th में उनको समझ में आया होगा, जो 8th में उनको समझ में आ जाएगा. आ गया ना. तो अभी आपको कब सोना चाहिए? जितना जल्दी हो सके. 10 के पास आसपास सो जाना चाहिए. 10 बजे सो के अगर आप 5 बजे उठते हो, तो कौन बता सकता है कितने घंटे की इफेक्टिव नींद हो जाएगी? 10 से 5 इफेक्टिव स्लीप कितनी होगी? इफेक्टिव टोटल स्लीप, एक्चुअल स्लीप कितने घंटे की मिल जाएगी? पक्का ना. मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, आई टेक योर वर्ड्स. ठीक है, ठीक है, ओके ना. आई कैन बिलीव यू. ओके फाइन. ओके, तो अगर आपका सोना, एक्सरसाइज और खाना, अगर 3 चीज ठीक है, तो आपका बॉडी फिट है. फिट बॉडी के साथ बहुत कॉन्फिडेंस रहता है. बीमार होने के बाद क्या कैसा लगता है? तुम्हारा बहुत आंसर हो गया. यस. कब लगता है बीमार, कैसा लगता है? In body, our body get hot. How you feel when you are sick? Sick. Sick. How you feel when you are sick? How you feel? हाँ हाँ हाँ. Weak. We feel very weak. Mentally also very weak, है ना. कुछ मन नहीं लग रहा करने का, है ना. लगता है ना. तो कॉन्फिडेंस आने के लिए पहले क्या होना चाहिए? गुड बॉडी होना चाहिए ना. When you have good body, we can go to the next point. Good mind, है ना. Emotional quotient. नीचे दिख रहा है आपको ये लाइन? इमोशनल क्वोशेंट, सीक्रेट ऑफ कनेक्टिविटी एंड पावर. एक दूसरे से आप कितने जल्दी कनेक्ट कर सकते हो, ये आपका दूसरा पावर है लाइफ में. जितने जल्दी आप किसी से कनेक्ट करके आप उसके मन को पढ़ के उससे बातें कर सकते हो, ये आपका इमोशनल स्ट्रेंथ है, आपके मन का ताकत है. कितने जल्दी आप दोस्त बना सकते हो. कितने लोग दोस्त बनाने में एक्सपर्ट हैं? आधे हैं. कितने लोगों को दोस्त पसंद नहीं आते? दोस्ती किया, मजा नहीं आया. चलो अभी बोलेगा नहीं कोई. ऐसा एक्सपीरियंस बोलना कठिन है. दोस्ती कैसे होती है इसका सीक्रेट है यहाँ पे, और दोस्ती कैसे टूटती है उसका भी सीक्रेट है. बोलो. हाँ, तुम तो यहाँ पेपर पढ़ के तुम सारा लीक कर दे रहे हो मैटर. मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा.
कैन आई गो हेड? ओके, थैंक यू. स्पीक विदाउट जजमेंट, ये दोस्ती करने का पहला फंड है. जजमेंट मत करो किसी को. जज करते हैं हम किसी को? डू वी जज अदर्स? समटाइम्स हम कुछ कुछ बोलते हैं ना एक दूसरे के बारे में. वो जब नहीं रहता है तब क्या क्या बोलते हैं. कोई 20 रोटी खाएगा तो क्या बोलेंगे? हाँ 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 हाँ, क्या बोलेंगे उसको? कोई 18 घंटे सोएगा तो क्या बोलेंगे? घटोत्कच, कुंभकर्ण. बोलते हैं ऐसी चीजें हम, है ना. और किसी के घर में उसका लॉन सूख रहा है, पानी भी नहीं दे रहे हैं, प्लांट्स लगा के तो रखे हैं, लेकिन किसी को पड़ी ही नहीं है, तो क्या बोलते हैं ऐसे लोगों को हम? केयरलेस. ये सब जितने हैं ना जो हम बोल रहे हैं, ये सब के सब जजमेंट्स हैं. केयरलेस बोल दिया ना हमने उसको. अच्छा, तुम जाके सो घर पे पता लगाओ कि क्या चल रहा है आपके घर में. एक इंक्वायरी कर लेना जाके कभी. पानी खत्म हो गया, बोलेंगे पानी नहीं आ रही ना, क्या करें, देखो हमारे प्लांट्स भी सूख रहे. अब क्या बोलोगे उनको? केयरलेस बोलोगे? अब क्या बोलोगे? ओ आई वाज मिस्टेकन, है ना, है ना, बोलेंगे ना ऐसा. तो जज हम कब करते हैं किसी को? जब उसके बारे में पूरा पता नहीं होता है तब, है ना. कोई 20 रोटी खा रहा है तो क्या बोलेंगे? 25 खाने लगा तब क्या बोलेंगे? मेरा एक दोस्त है, 150 केजी वेट है उसका, 148 केजी वेट है, और 150 केजी का वेट उठा लेता है. ही लिफ्ट्स 150 केजी वेट. और कितना पाव भाजी खा सकता होगा वो? 48 पाव भाजी इन वन गो. 48 पाव भाजी. हाँ, रेगुलर साइज का पाव 48. एक बार एक माता जी ने बुलाया उसको घर पे खाने के लिए. वो गया, 12 लोगों के लिए उन्होंने खाना तैयार किया था, ये 4 ही लोग गए. और माता जी चिल्ला रही है, तुमको 12 बोला था, तुम 4 ही कैसे आए? बोला माता जी अब खिलाइए ना, अब वो 3 लोगों ने 30 इडली खाई, और 72 इडली उन्होंने बनाई थी. 72 माइनस 30 ये खा गया. लेकिन जब वो वेट उठाता है तो 150 केजी उठा देता है ना. तो इसके लिए आप उसकी ताकत भी तो देख रहे हो ना. यू कैन नॉट जज हिम बाय ईटिंग, यू टू सी हिज आउटपुट ऑल्सो. एक साइड नहीं देख सकते केवल खा रहा है, दूसरी साइड देखो उसका आउटपुट कितना स्ट्रांग है ना. तो यू कैन नॉट जज बाय सीइंग द सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस कि ये ऐसा ही है. जज करते ही तुम्हारी दोस्ती टूटने का खतरा आ जाएगा, याद रखना. जजमेंट जैसे ही करोगे ना किसी का, तुम्हारी दोस्ती टूटेगी वहां पे. तो इफ यू वांट टू बिकम वेरी स्ट्रांग इमोशनली. अच्छा, होता है ना किसी से लड़ लिए, लड़ के आने के बाद पढ़ाई करते हो, पढ़ने में मन नहीं लगता है. कितने लोग का ऐसा एक्सपीरियंस है ना, होता है ना. तो अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो माइंड भी तो फ्री चाहिए ना, एकदम होना चाहिए ना फ्री. फ्री माइंड के लिए जजमेंट करना बंद करना पड़ेगा. जब हम बीजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, यहाँ पे ससुन हॉस्पिटल देखा ना स्टेशन के सामने, तो एक साल में एक इवेंट होता था, फिश पॉन्ड. उसमें क्या होता था, सब लोग एक दूसरे का कमेंट लिख लिख के डाल देते थे, कुछ सब कविता वविता बना के डाल देते थे. और फिर सब लोग आते थे उस दिन, और एक आदमी उठा उठा के पढ़ता था. तो जिसके बारे में जो लिखना लिख सकता है. तो एक किसी ने लिखा, एक लड़के का चश्मा मोटा था, तो एक लड़की ने कमेंट लिखा था. एक्चुअली लड़की ने नहीं लिखा होगा, किसी लड़के ने लड़की के नाम पे कमेंट लिख डाल दिया था. क्या लिखा था? तुम्हारे आंखें हैं गहरा गटर, कोई गिर जाता मगर ना होता जो चश्मों का सटर. बड़ा मजा आता है ना सुनने में. और किसी ने एक लड़के पे कमेंट किया था, उसका वो था, बाल्ड था, वो थोड़ा टकला था यहाँ पे. मैं तो खैर अलग स्टाइल का बाल्ड हूं, उसके पास था ही नहीं. तो वो उसने लिखा था कि एक लड़की लिख रही है ऐसा कि तेरे सर पे है चांद और मैं हूं तुम्हारी चांदनी.
जब भी आप ऐसे जजमेंट्स करते हो, आपका दोस्त भाग जाएगा कि साथ में रहेगा? कोई ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहेगा जो ऐसे कमेंट मारता है ना? जजमेंट करते ही लोग दूर हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना? कोई नहीं चाहेगा अपना हंसी उड़ाना ना कहीं पे पब्लिक में. When you judge, your mind becomes weak. याद रखना, पहला स्टेज. दूसरा है listen to feelings. दूसरे के फीलिंग्स को पहचानने का प्रयास करो, सामने वाले को क्या हो रहा है. मैं एक एग्जांपल देता हूं. तुम्हारा एक भाई है, सबका भाई होगा, है ना? नहीं तो बना लो किसी को भाई, ठीक है? वो अंडरवर्ल्ड वाला भाई नहीं, रेगुलर वाला घर वाला भाई. तुम्हारा भाई है, घर पे आता है, बैग को फेंक देता है दीवार पे और बोलता है स्कूल गोइंग इज फॉर बर्ड्स. स्कूल गोइंग इज फॉर बर्ड्स, इतना ही बोलता है, और बैग को जाके फिर एक लात और मारता है जाके. अब आप क्या बोलोगे उसको? यू टू गेट हिज फीलिंग्स. उसके फीलिंग को पहचान के कोई बताए कि क्या फीलिंग के साथ वो गुजर रहा है. फीलिंग बताना है एक आध शब्द में, जस्ट इन 1 or 2 words. एंग्री, maybe right. Anything can be right here. हाँ. Tension may be right. और कुछ? Depressed doesn't look like. Throwing, see, बैग को थ्रो करके जाके एक लात भी मार रहा है उसको. डिप्रेशन में लात नहीं मारेगा उधर जाके. डिप्रेशन में बैग को छोड़ के खुद ही बैठ जाएगा, वैसा बैठेगा. डिप्रेस्ड. एग्रेसिव, यस. और कुछ? हाँ, झगड़ा करके आया होगा, ये भी हो सकता है. मार खा, ये ज्यादा कॉमन है. मार खा क्या होगा? तो व्हाट फीलिंग इज गोइंग थ्रू? क्या फीलिंग? हाँ, फीलिंग्स. एंगर, कुड बी. फ्रस्ट्रेटेड, बहुत क्लोज है. हाँ. प्रेशर स्टडीज भी इतना नहीं लग रहा है, ठीक है, हो सकता है, ये भी हो सकता है. फ्रस्ट्रेटेड बहुत क्लोज है. मैंने जब उससे वहां बात किया था, एक्चुअली दैट बॉय वाज बोर्ड. मैं बोला कि आर यू फीलिंग बोर्ड? यस आई एम बोर्ड. जो राइट फीलिंग पकड़ना होता है ना, वो आंसर मेरे पास नहीं है, वो बच्चे के पास आंसर है. उसको पूछना पड़ेगा, आर यू फीलिंग दिस? नो, मतलब एकदम नहीं है. आर यू मे बी, मतलब अभी भी आया नहीं है, क्लोज है अभी. आप लेगा यस. जब यस बोल दिया ना, राइट फीलिंग पकड़ते ही सामने वाला का बॉडी रिलैक्स हो जाएगा. ऐसा दिखेगा उसको, देखना कभी भी. राइट फीलिंग पकड़ते ही सामने वाला रिलैक्स फील करेगा, जैसे बाप रे कितना बड़ा प्रेशर हट गया सर के ऊपर से. और ये दोस्ती करने का बहुत बड़ा फंडा है, सामने वाले का फीलिंग पकड़ लेना. सामने वाला अगर रिलैक्स हो जाए ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, बनेगा ना. ऐसा होगा तो तुम सामने वाले की फीलिंग बता दोगे. तो ये भी सेकंड प्रैक्टिस है माइंड को स्ट्रांग करने का. गेट टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दोस्त अच्छा बन जाओगे. तीसरा है लर्न टू रिक्वेस्ट. ठीक है, अगर आपको नई वाली कुछ खरीदना है, घर में आपको रिक्वेस्ट करना है, तो आप मॉम के पास जाते हो, मॉम पापा के पास. ऐसे रहता है ना, कैसे रहता है कि पापा के पास पहले जाते हो, पहले मॉम. क्या खरीदना रहता है जनरली? गाड़ी, वॉच. कौन सी? रोलेक्स. नहीं, ब्रांड का नाम बताओ ना. रोलेक्स, फास्ट ट्रैक, ओके. यू डोंट वांट स्लो ट्रैक, ओके. टाइटन, ओके. तो आपने जाके डिमांड किया, कितने की आती है? 5,000. 5,000, ठीक है. 5,000 वाली वॉच आपने, कौन सी? 5,000 की. हाँ, टाइटन. आपको टाइटन चाहिए. आपने घर में जाके बोला, कैसे बोलते हो आप? हाउ डू यू रिक्वेस्ट? पहले पढ़ाई करके दिखाना पड़ता है, अच्छा होता है. फिर एक धीरे से, हाँ ना, बर्थडे के आसपास वाला टाइम होता है, फिर आप धीरे से डाल देते हो, फिर वो आगे जाता है, फिर वो प्रोसेस संसद में पास होता है, राज्यसभा, लोकसभा, फिर रिटर्न आता है. वैसे होता है ना घर में भी, है ना. फाइनली यू गेट योर न्यू वॉच, राइट. तो रिक्वेस्ट कैसे पुट करते हैं जिसमें एकदम स्वीटली जा रहा है ना, वही रिक्वेस्ट सही है. कभी कभी हम कैसे करते हैं? जिद करते हैं ना, जिद रिक्वेस्ट है कि नहीं? नहीं है ना. जिद करते हैं तो क्या हम दिखा रहे हैं, नहीं करोगे तो मैं ऐसा करूंगा.
मैं सब पटक दूंगा, मैं अपने पैर पटक दूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, जाओ। मैं खाना नहीं खाऊंगा, बात नहीं करूंगा, और क्या, कमरे में बंद हो जाऊंगा, और टॉयलेट नहीं, तुम अच्छे पाइप लगा देंगे तुम्हारे, हॉस्पिटल जाओगे, इनेमा हो जाएगा। ये जो है ना, ये जो सेकंड चीज जो कर रहे हो ना, ये है थ्रेट। जब थ्रेट लग जाता है ना रिक्वेस्ट के साथ, तो रिक्वेस्ट नहीं रहता वो, अब वो क्या है, धमकी है, बच्चों की धमकी। छोटा बच्चा जान के हमको मत समझाना रे, धमकी हो गया, हुआ नहीं धमकी की, नहीं धमकी हो गया ना। रिक्वेस्ट जैसे धमकी बनता है, तुम्हारे माइंड का पावर कम हो जाता है। कभी भी धमकी दिया मतलब तुम्हारे में दम नहीं था, है ना, है ना। धमकी का मतलब तुम्हारे में दम नहीं था। धमकी वही देता है ना, ए तुमको बताऊंगा ना, मारूंगा ना, ऐसा सारे दांत तोड़ दूंगा। तो तोड़ देता तो फिर बोलता क्यों? ना, इतना ही दम था तो कर ही देता था ना, नहीं था इसलिए तो बोल रहा है ना। धमकी का मतलब है तुम्हारे में दम नहीं है ना। और रिक्वेस्ट में धमकी ऐड करने से तुम्हारा रिक्वेस्ट का ही ताकत खत्म हो जाता है। रिक्वेस्ट कैसा होना चाहिए? यू टेल योर पेरेंट्स मुझे ये वॉच चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो भी आई एम सेम टू यू। एक्चुअली आई वेरी मच वांट दिस वॉच, बट इफ यू डोंट गिव आई एम सेम। ठीक है, दे विल पिक यू अप, हग यू, उनके आंखों से आंसू आ जाएंगे अगर आपने ये लाइन बोल दिया तो। देंगे नहीं, देखो देंगे नहीं देंगे वो जजमेंट उनका है ना। फिर तुमने वो डाल दिया ना, जिद डाल दिया, तो क्या हो गया? वो थ्रेट हो गया ना। थ्रेट होते ही तुम्हारी ताकत कमजोर हो गई कि नहीं? तुम चाहते हो ना तुम स्ट्रांग रहो अंदर से, तुमने क्या करना चाहिए? थ्रेट देना बंद करना चाहिए। चाहे अपने इक्वल्स को थ्रेट देते हो, ए दोस्तों कि ना, बोलते हैं ना, ये क्या थ्रेट है। थ्रेट देते ही तुम्हारी ताकत कम होती है। लर्न टू स्टॉप थ्रेट। अपनी लैंग्वेज से थ्रेट को बंद करो। अगर तुमको बड़ा बनना है, बड़ा तो तुम ऐसे ही बन ही जाओगे एक दिन। बड़े का मतलब मेरा सेंस है आपका इफेक्ट, आपका प्रभाव बड़ा करना है। थ्रेटनिंग लैंग्वेज बंद कर दो। जहां पे थ्रेट वाले लैंग्वेज है मत बोलो। रिक्वेस्ट करना सीखो किसी को। और रिक्वेस्ट में कितनी ताकत है पता है? मैं आपको एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं। एक टीचर थी, यंग टीचर थी एक स्कूल में, फॉरेन कंट्री का घटना है। और वो ऐसे ही एक सेशन अटेंड करके गई थी, रिक्वेस्ट की ताकत देख रही थी और अच्छा उसने ट्रेन किया। अपने स्कूल में कुछ काम करने रुक गई थी एंड शी वाज वेरी यंग। तो क्या हुआ कि आफ्टर स्कूल आवर्स, और फॉरेन कंट्रीज में इतनी भीड़ नहीं होती यहाँ जैसे कि शाम हो गया तो भी लोग दिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब हो गया मतलब कोई नहीं दिखेगा वहाँ पे, स्कूल के अंदर कोई नहीं होता। तो कोई ऐसा हुडलम, एक मवाली आ गया अंदर, उसने गन भिड़ाया उस पर, सीधा अंदर स्कूल में आ गया। रिमूव योर क्लोथ्स। लड़की ने बोला, दैट लेडी ने बोला, आई कैन सी हाउ मच पिस्ड यू आर, कैन आई डू समथिंग एल्स, आई एम फीलिंग थ्रेटेंड। उसने ये टेक्निक लाया, लिसन टू फीलिंग्स। उसने पहले बोला उसकी फीलिंग, आई कैन सी हाउ मच यू आर, हाउ मच यू वांट दिस। एक फीलिंग पकड़ा उसका। उसने अपना फीलिंग बोला, आई फील थ्रेटेंड। उसने बोला, आई से रिमूव योर क्लोथ्स। बोला, कैन आई डू समथिंग एल्स फॉर यू? बोला, गिव मी योर पर्स। तो पर्स लिया, पैसे निकाले, पर्स फेंका, चला गया। रियल इंसिडेंस। रिक्वेस्ट में अगर थ्रेट हटा दोगे ना तो एक डाकू का भी दिल बदल सकता है। ये रिक्वेस्ट में इतनी ताकत होती है, केवल थ्रेट हटाना होता है तुमको। बहुत हो सकता है, इसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है रिक्वेस्ट करते समय। माइंड का ताकत कैसा होना चाहिए? एक बार बुद्ध जा रहे थे जंगल से, जाना स्टोरी पता है आपको? और उंगली माल मिला उनको, उसने कहा कि ठहर जा, और बुद्ध ने क्या बोला? क्या बोला? नहीं, उसके पहले क्या बोला? एक लाइन, उसके पहले का एक लाइन बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मिस हुआ है जो इसके से रिलेटेड है। हाँ, क्या बोला? हाँ, क्या कहा उन्होंने? हाँ, नहीं, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कहा उन्होंने, मैं तो ठहर गया। और उसके बाद
तू कब ठहरेगा? इतना ही बोला उसने, ये नहीं बोला अगर तू नहीं ठहरेगा ना मेरे पास भी तमंचा है, देख 303 लोड है, लगाऊं क्या? बोला गया ऐसा कुछ नहीं, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? उसने सब छोड़ दिया, क्या हुआ? वो सरेंडर हो गया, हुआ ना? हुआ ना? एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मगध का राजा अशोक लड़ने के लिए गया उड़ीसा, पूरे मगध नहीं, उसने पूरे इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा वर्मा सब उसी का था, चाइना वाइना सब उसी के अंडर में थे, पूरा आधा वर्ल्ड उसकी जागीरदार थी। तो वो लड़ने गया उड़ीसा के किंग के साथ, उसने किंग को मार दिया, सबको मार दिया, और अंदर में ना फोर्ट के अंदर में रानियां रहती थी, और जब वो उसने उस दरवाजा तोड़वाया ना उसका, तो कुछ 50 लड़कियां थी, और कुछ रानियां थी, कुछ औरतें थी, लड़कियां थी, ये सब तलवार लेके घोड़े पे बैठ के निकली, और सामने लाखों की सेना थी अशोक की, और 50 औरतें ऐसा तलवार लेके निकल रही है। अशोक ने देखा, क्या बोला उसने पता है? हथियार गिरा दो, सबको बोल दिया उसने, सारे लोग हथियार गिरा दो, सबने अपना हथियार नीचे रख दिया। क्या हुआ, कोई बता सकता है? अगर वो 50 औरतें लड़ने आती थी और यहां पे 1 लाख लोग थे तो क्या होता था? लड़ने से क्या होता था? कौन जीतता था? कोई डाउट है? लेकिन उसने वो क्यों कहा हथियार गिरा दो? हाँ, नहीं, तुम दोनों ने बहुत आंसर किए, नहीं इधर भी नहीं, तुम लोगों ने बहुत आंसर किए, कोई और साइड से चाहिए मुझे आंसर, ये साइड से चाहिए, इधर 2-3 रूम है। हाँ तुम बताओ, तुमने कुछ आंसर किया? हाँ, सो व्हाट हैपेंड टू अशोक? हाँ, उसका दिल बदल गया, बदला कि नहीं? उसके दिल में बदलाव आया ना, है ना? आया ना? ये हार्ट चेंज होना बहुत जरूरी है, और ये एक रिक्वेस्ट से होता है ना? रिक्वेस्ट करने का ताकत हमको सीखना होगा। 3 चीजें हमने सीखा माइंड को स्ट्रांग करने के लिए। क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है हमको? क्या देखना है दूसरे के अंदर? और किसी से अगर कुछ मांगना है तो कैसा होना चाहिए? और रिक्वेस्ट किसको नहीं कहते हैं? जब रिक्वेस्ट में क्या ऐड हो जाता है? थ्रेट होता है। ये 3 चीज करने से माइंड स्ट्रांग होगा। अगला देखिए, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट, IQ। नाम सुने आपने? IQ है ना? बहुत लोग सोचते हैं IQ कैसे बढ़ाया जाए, है ना? IQ बढ़ाने की टेक्निक है। ये 4 शब्द याद रखिएगा। साउंड एग्जिस्ट इन 4 फॉर्म्स, वैकारिका, मानसिक, पश्यंती, परा। ये संस्कृत के वर्ड्स हैं, उसका मैंने इंग्लिश कुछ क्लोज ट्रांसलेशंस किए हैं। मैनिफेस्टेड साउंड, मेंटल साउंड, विजुअलाइजेशन एंड डिजायर्स। आप रास्ते से जा रहे हो और एक टॉप ब्रांड की ऑडी गई, ब्राउन कलर की, चिंग करते हुए ऐसा। क्या हुआ? कितने लोग ऐसा हो जाता है? होता है ना? होता है कि नहीं? ये हुआ, देखो क्या आ गया? आ गया कि नहीं? आ गया ना डिजायर? विश आ गया ना? वो मेरे पास भी होती थी, कितना अच्छा होता। आया कि नहीं? तुरंत ही आ गया ना? इसके बाद क्या होता है? आप जिधर भी जा रहे हो, जिधर इधर घूम रहे हो, क्या हो रहा है? वो बार बार कार आ रही है, चिम, Q7 ऑडी, चिम चुम, बार बार वही घूमते हुए दिखते है कि नहीं? ना चाह के भी दिख रहा है ना वो। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसको कहते हैं संस्कृत में पश्यंती, बहुवचन, विजुअलाइजेशन। उसके बाद आप सोचने लगते हो कि ये गाड़ी कितने की है, थोड़ा गूगल सर्च करते हो, है ना? ओ माय गॉड, 90 लाख, भाव कब गिरेगा? जल्दी गिरेगा, मार्केट डाउन है। तो आप उसके बारे में सोचने लगते हो, अच्छा इसमें कितने का इंजन, कितने पावरफुल है, माय गॉड बस का इंजन लगा हुआ है इसके अंदर। कार में बस का इंजन है, माय गॉड टू मच, है ना? पिकअप कितने हैं? 0 to 100 इन कितने सेकंड्स? आई डोंट नो, 3 और 4 सेकंड्स, 3 सेकंड्स और 4 सेकंड्स। पिकअप गाड़ी की, वट एवर। वो तुमने सब इंक्वायरी करना चालू किया, तुमने सोचना चालू किया उसके ऊपर। ये है तुम्हारा 3rd लेवल ऑफ साउंड, मेंटल। और 4th साउंड है जब तुम उसके लिए प्रयास कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, जमा कर रहे हो, बैंक में जमा कर रहे हो, खरीदने जा रहे हो। ये सब 4th लेवल ऑफ साउंड है। ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक ये तीनों स्टेज क्लियर नहीं है। ये तब तक काम नहीं करेगा, कोई चीज तब तक तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकती जब तक ये 3 स्टेजेस तुम्हारे क्लियर नहीं हो रहे। इसके बिना वो चीज तुमको मिलेगी ही नहीं।
चाहे कुछ भी हो, तुमको सक्सेस चाहिए, कुछ लाइफ में बड़ा गोल चाहिए, यू वांट टू बिकम IAS ऑफिसर और यू वांट टू बिकम ए बिजनेस टाइकून, बहुत बड़े बिजनेस मैग्नेट बनना चाहते हो, पहला तुम्हारा हुआ डिजायर, सी योर सेल्फ एज ए बिग मैग्नेट टाइकून, उसके बाद आप उसको प्लान करते हो, देन यू वर्क ऑन इट। बॉम्बे में इंडिया के टॉप के जो 5 के लोग हैं, जो सबसे रईस घराने हैं, उसमें से 2 घराने ऐसे हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया हुआ है ना, अम्बानीज एंड टाटा। जीरो से स्टार्ट नहीं, टाटा रिच बिफोर ऑल्सो। रतन जी टाटा के पहले भी सब अमीर ही थे, जमशेद टाटा भी बहुत अमीर थे। और कोई दूसरा एग्जाम्पल? हाँ हाँ, ही इज नॉट रिचेस्ट इन बॉम्बे के रिच लोगों में उसका कहीं काउंट नहीं, अंबानी तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, बट अंबानी भी अभी जो मोटा भाई है उसका तो फादर से आया हुआ है। मुझे ऐसा एग्जाम्पल चाहिए जो कि जीरो से उड़ गया और टॉप 5 में होंगे इंडिया में ऐसे। वर्ल्ड के 150 फॉर्च्यून कंपनीज में हैं और साइकिल चला के चालू किया उन्होंने। ही केम इन बॉम्बे विथ हाफ पैंट एंड ए बाइसिकल, हिज ब्रदर स्टेज इन पुणे। से गेस, अग्रवाल जी हैं कोई? हाँ हाँ हाँ, मैं जहां भी गया, आई डोंट नो, समहाउ वी इंडियंस डोंट नो आवर ओन ग्लोरी समटाइम। हाँ, मित्तल नहीं, मित्तल तो खैर इंडिया में नहीं, बॉम्बे में नहीं रहते हैं, मित्तल लंदन में रहते हैं। बॉम्बे में रहने वाले ग्रुप हैं, इंडिया के टॉप 5 में, वर्ल्ड के 150 फॉर्च्यून कंपनी में नाम है उनका। हाफ पैंट और साइकिल से चालू किया उन्होंने अपना करियर। अमिताभ बच्चन, उसके पिताजी तो मधुशाला गाना लिखते थे, वो पिक्चर में साइकिल चलाता है, रियल लाइफ में बहुत बड़ा बंगलो है उसका। वो कूली बना था पिक्चर में। सारी दुनिया का बोझ हम उठा। वो पिक्चर वाला है, वो अमिताभ, रियल का अमिताभ, बहुत बड़ा बंगलो है उसका जू में। परवीन अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, परवीन अग्रवाल स्टेज इन पुणे, अनिल अग्रवाल स्टेज इन बॉम्बे। 150 फॉर्च्यून कंपनीज ऑफ वर्ल्ड। वेदांता 85,000 करोड़, इंडिया भारत के 5 रईसों में से आते हैं, दुनिया के 150 रईस कंपनियों में से हैं। हाफ पैंट पहन के आए थे, कहते हैं आई वाज ए कॉलेज ड्रॉप आउट एंड IITians वर्क अंडर मी। तो उनसे एक सवाल किया गया कि हाउ यू गॉट सो मच, एक वर्ड में आप बता सकते हैं कि इतना कैसे आपको मिला? He said one word he gave, courage. Courage is the word he said. अगर courage है तो हर चीज एक के बाद एक आती है। और courage कितने लोगों में हो सकती है? पैसा लगता है courage खरीदने के लिए, है ना? नहीं लगता ना? फिर courage तो फ्री की आ रही है, जितना courage लेना ले लो, है ना? कोई रोक रहा है तुमको courage करने से, है ना? इधर से कूद मत जाना, बोले सर आपने बोला था बहुत करेज मैंने ज्यादा ले लिया। रिस्क कैलकुलेट करके लेना है। तो पहले है डिजायर्स, कोई भी चीज को चाहिए तो पहले करेज चाहिए कि मैं कर सकता हूं, उसके बाद चाहिए वो मिल जाने के बाद उसका विजुअलाइजेशन, वो मिल गया तो कैसा हो जाएगा, लाइफ कैसा बन जाएगा, उसके बाद उसका प्लानिंग और उसका एक्शन। ये 4 स्टेज में कोई भी चीज क्रिएट होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 2 पहाड़ है और उसको एक ब्रिज बनाने वाला इंजीनियर वहां जाता है देखने के लिए, केवल अभी 2 पहाड़ है, अभी कुछ नहीं वहां पे, केवल 2 पहाड़ है, इधर से एक रोड है, उधर से एक रोड है, बीच में रोड मिसिंग है। अब उसको क्या दिखेगा दोनों पहाड़ को बीच में? हाँ, ब्रिज दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? अभी ब्रिज है क्या वहां पे? इसको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? सपोज कर लो तुम उस पहाड़ पे गए पिकनिक करने के लिए, तुमको ब्रिज दिखेगा? तुमको क्या दिख रहा है? तुमको दरिया दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, पार्टी की जगह है ना? एक आयुर्वेदिक डॉक्टर पहुंच गया उसी पहाड़ पे, आयुर्वेदिक का डॉक्टर होता है ना, आयुर्वेद जड़ी बूटी वाले बाबा, वो पहुंच गया, तुमको क्या दिखेगा जंगल में? हाँ, प्लांट दिखेंगे, जड़ी बूटी पत्ते दिखेंगे। अरे इसमें ये पता है किस चीज की दवा है, इसमें कफ और कोल्ड की दवाई इधर पड़ी है ना? हर व्यक्ति को वही पहाड़ अलग दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना? और आतंकवादी वही पहाड़ दिखेगा तो जैसे मोहम्मद, हाँ, उसको कुछ और दिख रहा है, कहां छिपना है, किधर से गोली चलाना है। हर व्यक्ति को वही पहाड़ अलग दिख रहा है कि नहीं? तो विजुअलाइजेशन एक ही चीज की अलग अलग लोग को अलग अलग होती है।
ये है तुम्हारा ये साउंड, विजुअलाइजेशन का साउंड है ना, अलग अलग लोगों का, हर अलग लोग अलग अलग जैसे सोचते हैं। और उसके बाद है मन की आवाज, जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूं आपको, ये आवाज है मैनिफेस्टेड फॉर्म ऑफ साउंड। पहला ये 25% है साउंड का। आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हो ना, अच्छा इतना सारा चीज बता रहे, मैं नोट नहीं कर पा रहा हूं, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, मन में आप सोच रहे हो ना बातें, ये बातें हैं आपकी मेंटल साउंड। ये आवाज बोल तो नहीं रहे हो आप, लेकिन अंदर तो आ रही है ना ऐसी आवाजें, है ना। अब उसके नीचे विजुअलाइजेशन, आपको मेरे बारे में एक इमेज बन रहा है। माय गॉड, आई नेवर थॉट साधुज कैन स्पीक सच थिंग्स, है ना, लगा होगा ना आपको, लगा होगा कि शायद बाबा बताएंगे, देखो ऐसा है, सांस इनहेल एक्सहेल, नाउ यू कैन गो अप इन द स्काई स्लोली स्लोली स्लोली। ऐसा कुछ हुआ अभी तक नहीं हुआ। तो आपका जो एक इमेजिनेशन, एक जो परसेप्शन था एक साधु का, कुछ तो जरूर चेंज हो गया होगा, है ना। तो ये आपका हो गया है विजुअलाइजेशन। और ये डिजायर्स, आप यहाँ बैठे हो अपनी इच्छा से बैठे हो ना, किसी ने बाहर ठिकाया नहीं था ना, 2 घंटे तक बैठे रहना, नहीं तो बता दूंगा। तो आपने डिजायर से बैठे हो ना, ये 4 चीजें ये साउंड के हर जगह होती हैं। क्रिएशन भी ऐसे होता है। अब आपको करना है एक एक्सरसाइज जस्ट फॉर 2 मिनट्स। आपका पेन एंड पेपर है? नहीं है? है, निकालो। यू हैव 5 seconds टू टेक योर पेन एंड पेपर आउट। आई विल काउंट 101, 102, 103, 104, 105। हाँ, टेक ए पेपर, खोलो। अब आपको पेन लेना है। राइट 3 things यू वांट टू अचीव इन लाइफ। 3 चीजें लिखने जो आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, लिख डालिए। आपको चाहिए, जो भी चाहिए लिख दो। क्या बनना है वो लिख दो, क्या चाहिए वो लिख दो, जो चाहिए लिख डालो, बस लिखो तो सही। लिख लिया? 3 चीजें लिख लिया आपने? ए आई वांट यू टू बी फास्ट ट्रैक चाहिए ना आपको, नहीं तो मैं स्लो ट्रैक दे दूंगा आप लोगों को। घड़ी तो फास्ट ट्रैक चाहिए ना, तो लिखो फास्ट। राइट डाउन 3 things यू वांट टू अचीव इन लाइफ। एकदम मैजिक होने वाला है, मैजिक। देयर विल बी गोइंग टू बी मैजिक। लिख लिया 3 things? किसी बगल वाले का मत लिखो यार, तेरा अपना लिख। You'll get a check if you write the others one. आपके नाम लिख के एक टिक लगा देंगे वहां पे। हो गया? 3 चीजें लिख लिया आपने जो आपको चाहिए। कम ऑन, हैंड्स अप, हैंड्स अप, हाथ उठा नहीं तो ठोक दूंगा। हाँ, अब आपको 3 में से 2 के ऊपर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर टिक लगाना है। वो 3 में से जो 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर एक टिक, जस्ट पुट ए टिक। हो गया? 2 में से 1 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर एक स्टार लगाओ। 2 में से 1 होगा ना, जो 2 इंपॉर्टेंट में से जो 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें एक स्टार लगाओ। स्टार हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ। अब जो स्टार लगा हुआ है ना, उस एक गोल के लिए हम एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। जो आपको एक स्टार वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल मिल गया ना आपको, उसमें से उस इंपॉर्टेंट गोल के लिए हम एक्सरसाइज आगे बढ़ाने वाले हैं। एक के लिए बस। वो जो एक आपने लिखा है, अब आपको नीचे लिखना है कि वो गोल आपको कब तक चाहिए। डेट डालो, किस डेट, कौन से साल में, कब तक चाहिए वो चीज। हाँ, बाय विच ईयर? आज है 2019 सितंबर 22। अब आपको वो गोल कब तक चाहिए? 2026 तक चाहिए? तुम्हारा है, वो अनाउंस नहीं कर सकते, सबका हो जाएगा नहीं तो। किसी को जल्दी चाहिए। लिखा? सिंपल है, नहीं हो रहा? हो रहा है? डन? इतना लिख लिया ना सबने? अब आपको लिखना है, आपने कहां पे लिखा है। राइट डाउन, इट इज ये ट्रेजर आइलैंड, PILF पुणे इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल, और ये बानेर, यजदा बानेर रोड, यजदा ऑडिटोरियम बानेर रोड। लिखो कहां पे आपने लिखा है ये, राइट इट डाउन। यशोदा नहीं,
यशोदा हरि पालन झुलावे हलरावे डुलरावे, यशोदा हरि पालन झुलावे। यशदा लिखो, यशदा। हो गया, लिख लिया आपने? कहां लिख रहे हैं आप? लिख लिया ना? अब आपको लिखना है अपना नाम। कौन लिख रहा है वो लिखो। अपने पापा का नाम, अपना नाम, आपके फैमिली कहां से है वो लिखो। भाई कोई बोलेगा किसने लिखा पता नहीं ना, वो लिखना है। फास्ट ट्रैक की सोचो, जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? डन? अपना नाम, पूर्ण नाम, और वो फैमिली के साथ कुल गोत्र भी लिख दो, जो भी है आगे पीछे तुम्हारे लिनियज का भी नाम लिख दो। लिखो, तुम्हारा पूरा आइडेंटिटी लिखो भाई, किस विलेज से हो, है ना, किस फैमिली लिनियज से हो, वो भी लिखना है। अरे बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, कोई आईएएस का पेपर नहीं लिखवा रहा हूं मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया लिख के? नाउ वी कम बैक, मेरे पास आ जाओ सब। लुक एट मी, आई वांट यू टू लुक एट मी। अब आपको ये जो लिखा हुआ है ना, इसको काट के अपने टेबल के सामने घर में जाके चिपकाना है। किसने लिखा है ये सब? मैंने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? तुमने लिखा है। मतलब मैंने लिखा है, मतलब तुमने लिखा है, मतलब मैंने लिखा है ना? वही तुमने जो मैंने है वो लिखा है ना? इसको लिख के या इसको और बड़े फॉन्ट में लिख के एक बड़े A4 साइज पेपर पे लिख के टेबल के सामने चिपकाना है। हाउ मेनी विल डू दैट? कितने लोग करेंगे घर पे जाके A4 साइज पेपर पे इसको फिर से लिख के इसको चिपकाएंगे? रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। और जो हाथ में उठा रहा है अपन उसके लिए खड़ा है इधर, ऐसा मारेगा ना भेजा दुरुस्त कर देगा। हो गया? ये तूने बाद में हाथ उठाया? बाद में उठाया ना? ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, डर गया, नो प्रॉब्लम। हो गया ये 4 स्टेप। अगर आप ये कर सकते हो, आप जितना भी लाइफ में अचीव ऑप्टिमम कर सकते हो कर लोगे। जो आप ऑप्टिमम अचीव कर सकते हो, अगर ये 4 स्टेप करोगे आपके लाइफ में आ जाएगा। ऑप्टिमम मतलब जितना आप मैक्सिमम ग्रो हो सकते हो। और किसका कितना मैक्सिमम कोई नहीं जानता। कोई जानता है किसका कितना मैक्सिमम है? हाँ, नरेंद्र मोदी को पता था जब चाय बेचते थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? उसको पता नहीं होगा, है ना? किसी को पता नहीं था, है ना? तो कौन क्या हो सकता है, कह नहीं सकते ना। हु कैन बिकम व्हाट। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल क्वोशंट। ये लास्ट का है। जब आपके पास सक्सेस आ जाता है ना ये सब करके, तब लोग सेल्फिश हो जाते हैं, सोचते हैं कि पैसा मैंने कमा लिया ना, अब मुझे बस उसको संभाल के रखना है। अच्छा, मरने के बाद कौन लेके जाता है? बिरला? हाँ, बेटा लेके जाता है। अच्छा, बेटा लेके जाता है। मेरे को लगा मरने के बाद बिरला लेके, मरने के बाद कोई लेके गया है? नहीं। तो जो तुम्हारे पास फैसिलिटी है उससे किसी का कोई मदद कर देना चाहिए। जाते जाते, इस दुनिया से जाते जाते हमको कुछ लोगों को हेल्प कर देना चाहिए। कुछ ऐसा कर देना चाहिए कि मरने के बाद लोग याद करें। ये नहीं कि मरने के बाद बोलेंगे अच्छा हुआ, धरती का बोझ कम हुआ। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना लोगों को। लोगों को बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि कितना अच्छा आदमी था, इसने मेरा हेल्प किया, उसके हेल्प किया, इसके मैरिज में हेल्प किया था, उसके पढ़ाई में हेल्प किया था। लोग कितना याद करेंगे ना ऐसा बोलो तो। ये आपका 4th डायमेंशन है लाइफ में। सक्सेस आने के बाद, सक्सेस आने के बाद आप उस सक्सेस को कैसे यूज करते हो। ये नहीं कि अहंकार आ गया, कह रहे भाई मेरे पास तो बड़ी गाड़ी आ गई, है ना, ये देखो रिक्शा भी घूम रहा है, ये डैश डैश बोलते हैं ना ऐसे हम। सक्सेस आने के बाद कितना अहंकार आता है कि नहीं? अहंकार एक फेलियर है तुम्हारे लाइफ में। जिसके लाइफ में अहंकार आ गया ना, फेलियर हो गया हो। सक्सेस आने के बाद भी वैसे रहना चाहिए जैसे अभी हो। मानते हो कि नहीं? अच्छा लगेगा ना ऐसे रहोगे तो हमेशा। ये इसके लिए फोर्थ डायमेंशन ऑफ लाइफ। सक्सेस का 4th लाइफ डायमेंशन कि हमेशा देना सीखना। किसी भूखे की मदद खिला देना, उसको किसी जरूरतमंद को दे देना, है ना। देना जब सीख जाओगे तो आपके लाइफ में फुलफिलमेंट आ जाएगा। लोग आते हैं मेरे पास बहुत बार कुछ प्रॉब्लम्स लेके, 1-1 घंटा 2-2 घंटा मेरा टाइम ले लेते हैं।
लेकिन जब उनके लाइफ में खुशी आ जाती है तो मुझे कैसा लगता है? अच्छा लगेगा ना, है ना? एक लड़का एक लड़की आते झगड़ते हुए, वी वांट डिवोर्स, व्हाई ही कांट स्पीक गुड इंग्लिश। हाँ, आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी, हम हवा से नहीं बता रहा। बॉय सेज शी डजंट नो कुकिंग। दोनों भी नमूने हैं, है ना? एग्री? दोनों को थोड़ा सा बदलना चाहिए कि नहीं? इसको थोड़ा इंग्लिश सीखना चाहिए और इसको थोड़ा कुकिंग भी तो आना चाहिए, है ना? आफ्टर one counseling they agree to stay together, then that gives pleasure, right? I say they agree to continue with their disagreements. This is my statement. वो मान गए कि हमारे साथ जो भी डिफरेंसेस हैं हम साथ रहेंगे, थोड़ा थोड़ा झगड़ते रहेंगे लेकिन चलते रहेंगे। किसी ऐसे घर में, किसी भी घर में ऐसा देखा है कि कभी भी आपने झगड़ा नहीं देखा पेरेंट्स के बीच में? ऐसा कोई है जिसने कभी भी अपने पेरेंट्स को झगड़ते नहीं देखा? आज तक नहीं देखा। ऊंचा आवाज में बात करते भी नहीं देखा पापा मम्मी को? है? आप हैं? नहीं, कोई नहीं। देख लो, कोई भी नहीं, किसी के हाथ नहीं खड़ा है, देख लो, है ना? लेकिन आपको एक एग्जाम्पल बनना होगा। कैसा एग्जाम्पल? कि झगड़ा हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल, नो जजमेंट्स, है ना? सिखाया था ना मैंने। तो जब आप देना सीख जाते हो ना, तो आप बहुत फुलफिलमेंट फील करते हो, अपने अंदर बहुत स्ट्रेंथ फील करते हो, और वो स्ट्रेंथ आपको और ऊपर लेके जाता है। अच्छा ये बताओ, आज से 30-40 साल पहले किसी भी एक बहुत अमीर आदमी का नाम बता दो जो दुनिया में बहुत अमीर थे, या नंबर 1 का ही नाम बता दो, 30 या 40 साल पहले का कोई भी। शाहरुख खान 40 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। चल उधर बैठ, वो वाले चेयर में बैठ, उठ, वो वाली चेयर में बैठ, बगल वाली चेयर में। अरे बॉम्बे में भी उससे अमीर लोग हैं। चल, 4000 करोड़ उसका टोटल है, ठीक है? बॉम्बे में 80-80 हजार करोड़, और मोटा भाई तो कितने करोड़ उसको खुद पता नहीं। हाँ हाँ, बोलो कौन? हाँ, अरे ये आज का बता रहे हो बाबा, मैं 40 साल पहले का पूछ रहा हूं। 30 साल या 40 साल के पहले का बता दो किसी अमीर आदमी का नाम। टाटा, वर्ल्ड रिचेस्ट, वर्ल्ड में टॉप 5 टॉप 10 ऐसा कोई नाम बताओ। 40 साल पहले हो सकता है। 30 साल पहले तो था। 30 साल पहले नहीं था, शायद 25 साल पहले था वो। हाँ, 55 साल हो गए, कंपनी चला कि नहीं? नंबर 1 बन के बोलो। बिल गेट्स के पहले का कोई बता दे। चलो एक बिल गेट्स बता दिया। बिल गेट्स के पहले कौन सबसे अमीर था? हाँ हाँ सर, मैं तो नहीं था। कौन था? जॉन? जॉन तो कोई था ही नहीं। कौन था? जॉन था। अच्छा, चलो एक को पता है। कितने लोगों को जॉन नाम पता था इसको छोड़ के? किसी को नहीं। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा पैसे वाले लोगों को लोग 40 साल में भूल ही गए ना, है ना? किसी को याद भी नहीं 40 साल पहले सबसे अमीर आदमी कौन था? रॉकेफेलर थे, रुसिल्स थे, ये लोग अपने जमाने के सबसे अमीर लोग थे। हेनरी फोर्ड थे, जो फोर्ड कार आती है ना, वो पहला कार उन्होंने एक ऑटोमेशन कार इंडस्ट्री बनाई थी डेट्रॉइट यूएस में। आज कोई जानता भी नहीं, है ना? तो बताओ कितने लोग महात्मा गांधी को जानते हैं? सब जानते हैं? ओके, ठीक है। मदर टेरेसा को जानते हैं? ओके। कितने साल पहले थे ये लोग? 40 साल पहले। सत्तर साल पहले। बढ़ा थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, 80-90 साल पहले थे, है ना? थे ना? अब्राहम लिंकन, लिंकन कितने लोग जानते हैं ना? ओके। उसके बाद ये लोग 100 साल पहले तो थे, है ना? हाँ, आज भी तुम नाम जान रहे हो। तो महात्मा गांधी सबसे अमीर थे क्या? फिर आप क्यों नाम जानते उनका? कैसे ग्रेट हो गए? सुभाष चंद्र बोस का नाम कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। उनका नाम, उनका कितना पैसा था? कितनी जमीन थी उनके नाम पे? नहीं, पता नहीं। फिर आप नाम क्यों जानते हो? उन्होंने दिया लोगों को। ही लर्न टू गिव एंड ही लर्न टू फॉरगिव। दो चीज याद रखना, लर्न टू गिव एंड लर्न टू फॉरगिव। लर्न टू गिव एंड लर्न टू फॉरगिव। याद रहेगा ये आपको बड़े से
बड़प्पन तक लेके जाता है। आप पैसा कमा के बड़ा आदमी बनते हो, लेकिन देने से आप क्या बन जाते हो, बड़प्पन आ जाता है। अब आप एक दिलों में छा गए सबके, है ना। और ये चौथा सक्सेस है। चाहते हो ना ये सक्सेस भी चाहिए आपको ना, ये भी सक्सेस चाहिए ना लाइफ में। तो मैंने आज आपको 4 चीजें सिखाई। फर्स्ट, हाउ टू कीप योर बॉडी फिट। क्या क्या करना होगा बॉडी फिट करने के लिए? ईट फ्रूट्स, सूजन। दूसरा, एक्सरसाइज। तीसरा, एक्सरसाइज योगा एक ही में आ गया। और तीसरा, जंक फूड, डोंट ईट जंक फूड। ओके। तीसरा, नहीं तीसरा बॉडी। हाँ, टेक सफिशिएंट रेस्ट ऑन टाइम, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये 3 चीज सिखाई बॉडी के लिए। और इमोशनल स्ट्रेंथ के लिए, मन के स्ट्रेंथ के लिए मैंने सिखाया क्या नहीं करना है, जजमेंट्स नहीं करना है। और उसके बाद क्या पहचाना दूसरे के अंदर में, और क्या करना है बड़ों को। रिक्वेस्ट कब रिक्वेस्ट नहीं रहता, जब थ्रेट होता है ना। इससे आपका मन क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है ना। आईक्यू बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, गोल सेट किया हमने आज। डिजायर्स, विजुअलाइजेशन, मेंटल, हाँ मैनिफेस्ट। ये साउंड के 4 लेवल हैं कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए। क्रिएटिविटी का फंडा है, कोई चीज क्रिएट करना है 4 लेवल से होगा, ठीक है। और जब आपके पास सब कुछ आ जाएगा तो क्या क्या करना होगा, लर्न टू गिव एंड लर्न टू फॉरगिव। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चंस? Oh, very nice, very nice. When to request and when to assert. Good question. Thank you. Assert is same as request. There is no difference in practical life. When you don't put threat, your request is as good as assertion. It's an assertive speech. There are 3 kinds of speech we can do. One is I don't mind if you mind. एक मेरा दोस्त था, उसका नाम था सिमरजीत सिंह, ठीक है। सो ही वॉज माई गुड फ्रेंड, और वो स्कूटर ड्राइव करता था, मैं पीछे बैठता था। तो जब सिग्नल्स आता था ना, ग्रीन तो चलते रहता था, और लाल तो भी चलते रहता था। तो बोला, सिमर यार तू रुकता क्यों नहीं है? कहता है क्या बताऊं यार, क्या बताओ, हरा देख के मैं भगाता हूं, लाल देख के खुद भागने लगती है। क्या बोला उसने? लाल सिग्नल देख के स्कूटर ही भागने लगती है, रुकती नहीं है। ऐसा होता है क्या? स्कूटर खुद भागती है क्या अभी? ये क्या करता था, खुद ही भगाते रहता था। मीन्स दीज पीपल थिंक दैट इफ पीपल माइंड आई डोंट माइंड। तो दे आर वेरी ऑफेंसिव काइंड ऑफ, दे बिकम वेरी ऑफेंसिव बाय सच बिहेवियर, है ना। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं, ओह लोग क्या सोचेंगे। एक मेरा दोस्त था, है मतलब वो जब एमजी रोड, हम बीजे मेडिकल कॉलेज से एमजी रोड काफी नजदीक है, तो शाम के समय सब ड्रेस व्रेस टू टाइट करके एकदम उधर स्मार्ट बन के एकदम स्प्रे मार के उधर एमजी रोड में घूमने जाते थे। तो ये मेरा रूम पार्टनर था मनोज, तो ही टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर 2 hours। लेस भी, जूते का लेस भी एकदम बैलेंस में बांधता था, इधर का उधर का, दोनों फ्लावर मैच करके साइज इतना। मैं भाई यार कौन तेरे को देखने वाला है? यार लोग देखते हैं, यार लोग देखते हैं। अरे यार सब तो ऐसे सोचते होंगे ना, लोग हमें देख रहे हैं। बोला हाँ, तो सब अपने आप को ही तो देख रहे हैं, इसको कौन देख रहा है? नहीं यार लोग देखते हैं, यार लोग देखते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मेरा जो लाइफ है ना, दूसरों के ओपिनियन से चलना चाहिए, सब मुझे अच्छा अच्छा कहना चाहिए तब मैं अच्छा हूं। मतलब आपका सेल्फ स्टीम बहुत कम है। आप अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाइए। लोगों के अच्छे कहने से हम अच्छा नहीं बनते। हम सही चीज पे जब चलते हैं ना, सही रास्ते पे जब चलते हैं ना, तब हम अच्छे बनते हैं। अगर हम बुरे रास्ते पे चलेंगे और सब अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हम अच्छा बन जाएंगे? नहीं ना। हमारा सेंस ऑफ वर्थ हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे वैल्यूज से आना चाहिए, लोगों के कहने से नहीं आना चाहिए। हमारा वर्थ हमारा होना चाहिए, हमारे वैल्यूज हमारे पास होने चाहिए। और उसके वजह से दूसरों को जाके ये नहीं कि यू गेट लॉस्ट, यू फूल, यू डफर, जजमेंट्स नहीं करना चाहिए दूसरे को। अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए प्रॉपरली, येट वी शुड नॉट पुट थ्रेट्स ऑन अदर्स लाइफ, एंड दैट रिक्वेस्ट इज असर्टिव स्पीच। उसी रिक्वेस्ट को असर्शन कहते हैं, असर्टिव स्पीच कहते हैं। जिस रिक्वेस्ट में थ्रेट का कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, वही असर्टिव है।
बाकी सब ऑफेंसिव हैं या डिप्रेस टाइप का है, लेकिन बीच वाला ये है असर्टिव स्पीच. एम आई क्लियर? थैंक यू. We'll just launch his book on leadership. Yesterday we launched the English edition, and today we are launching his Marathi edition. It has been translated. Both his books on leadership, which has the several qualities that are required by a leader, is written that. They are very short stories in that, and very practical stories, 1 page each story or maybe 1.5 page each story. The books are available at stall number 11 at Vishwakarma Publications. So we'll just launch this book, and then the books would be available. You have many books on the leadership in the market. टाइम मैनेजमेंट पे लोग इतनी मोटी मोटी किताबें लिख के पढ़ा रहे हैं लोगों को, लेकिन पढ़ते पढ़ते 1 महीना हो जाता है और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए फिर टाइम नहीं बचता. सो आई थॉट इतना सब किसी के पास टाइम आज के ज़माने में है नहीं, तो टाइम मैनेजमेंट को मैंने केवल 3 पेज में डाल दिया है. टीम प्लेइंग कैसे करना होता है, इसके लिए बड़े बड़े बुक्स हैं और 10 से 15 बुक्स पढ़ने पड़ेंगे. हाउ टू डू टीम प्लेइंग. यू विल गेट बेस्ट ऑफ द मटेरियल इन जस्ट 3 to 4 पेजेस. ऐसे ऐसे 12 टॉपिक हैं. एंगर मैनेजमेंट है, हाउ टू चेंज योर बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट्स, हाउ टू कंट्रोल माइंड. मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम के लिए और आपकी खिड़की खुली है, सामने कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैंने वहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं. अब आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है कि जाके थोड़ा देर क्रिकेट खेल के फिर आके पढ़ाई करना चाहिए, कल एग्जाम है आपका. दूसरा ऑप्शन है खिड़की बंद करके पढ़ाई करना चाहिए. तीसरा ऑप्शन है कि थोड़ा थोड़ा देखते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए. तो और फोर्थ ऑप्शन, वेट वेट वेट, देयर वन मोर ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन है वीडियो गेम पे क्रिकेट खेलना चाहिए. ओके, फर्स्ट कितने लोग बोलते हैं? ओके, 1 2 कितने लोग हैं? 20 25 30 हैं. बी की सेकेंड ऑप्शन 1 2 3 4 6 7. थर्ड ऑप्शन सी डी नहीं. यू वांट टू नो द राइट आंसर? कल एग्जाम है यार. बी इज द राइट आंसर, नॉट ए. खिड़की बंद करो और पढ़ाई करो. आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं. डिस्ट्रैक्शन इज ए चॉइस. जस्ट 2 या 3 पेज में आपको एक प्रैक्टिकल चीज सिखा दी गई बुक कि ये चीज आपके लाइफ में कैसे हेल्पफुल है. मैंने इसमें कहीं भी कहानी नहीं लिखी है, बस छोटा छोटा एक टेक्निक बताया कि ये टेक्निक करो ये चीज मिल जाएगी, ये टेक्निक करो और करो और वो मिलेगी आपको. टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चार्ट बना के दे दिया है, वो चार्ट आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो और उसमें अपना शेड्यूल बना सकते हो. ऐसे 12 टॉपिक्स हैं. पीयर प्रेशर को कैसे तोड़ सकते हैं, नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी कैसे आ सकते हैं, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे डील कर सकते हैं, ऐसे सारे गुड लक बैड लक से ऊपर कैसे उठ सकते हो. बोलते हैं ना, इट्स माई लक, इट्स माई बैड लक, इट्स माई गुड लक, इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं. ऐसे ऐसे 12 टॉपिक हैं बुक में. पढ़ते पढ़ते आप स्मार्ट बन जाओगे. इट्स माई प्रॉमिस, यू विल बिकम बेटर देन व्हाट यू आर राइट नाउ. थैंक यू वेरी मच. सर